ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਅਨਪਲਗ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੀਟਰਬoro ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੀਟਰਬoro ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੌਰੀ ਚੌਧਰੀ, ਟਰਸਟੀ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵੀ ਬਨੋਟ ਜੋ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿੰਦੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਨਪਲਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। थैंक यू। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਗੌਰੀ, ਮਾਈ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਟੂ ਯੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਟਰਬoro ਹਿੰਦੂ ਟੈਂਪਲ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀਟਰਬoro ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਂਡ Yeah. ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟੈਂਪਲ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड कहानी काफी लंबी है, 40 साल पुरानी, और 14 साल से इसका नेगोशिएशन चल रहा है काउंसिल से इस साइट को खरीदने का। तो जिन लोगों ने इसको 1986 में स्टैब्लिश किया था वो लोग थे जो युगांडा से आए थे। ईदी अमीन ने जो प्रवासी भारतीय थे वहां रह रहे थे युगांडा में, ईदी अमीन ने उनको निष्कासित किया था। उन लोगों ने आके यहाँ पे 1986 में इसको स्थापित किया था। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग स्टैब्लिश उन्होंने किया था, बट अभी पीटरबoro का डेमोग्राफ काफी यंग पॉपुलेशन भी है एंड फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, बिकॉज यहाँ पे TCS है, नेस्ट है, काफी और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंड ऑफ कोर्स NHS में तो हमारे काफी लोग हैं ही। तो इट्स उन लोगों ने इनको स्टैब्लिश किया था। दैट्स द हिस्ट्री ऑफ दिस टेम्पल। ਰਵੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਹੋ ਯੂਕੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ 14 ਸਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਸੂਪ ਕਿਚਨ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਲੋਕ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਖੇਲਣ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੌਰੀ ਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟਰਬoro ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਟਾਊਨ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਹੈ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਔਰ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਐਂਡ ਮੋਰਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਢੂੰਢ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਰਵੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸੌਰੀ ਫॉर ਇੰਟਰਰਪਟਿੰਗ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਰਾਈਟ? ਇਸ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੰਦਿਰ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਅ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਟਸ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਆਫ ਯਰ ਲਾਈਫ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ, ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਪੀਟਰਬoro ਵਿੱਚ बैठ के देखो किस तरह समझौता हो सकता है। बिल्कुल। तो गौरी, किस तरह का डिसीजन जो है हाले तक आ चुका है इस मंदिर नु लेके? तो हम लोगों ने कोर्ट पे जुडिशियल रिव्यू के लिए उसको बोलते हैं इंजंक्शन के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया था। ऑफ कोर्स कोर्ट इस बारे में काफी सपोर्टिव रहा है अभी तक, एंड बेसिकली अभी जो है उसको इंटरिम इंजंक्शन बोलेंगे। तो जज का नाम है फोर्डम। सो मिस्टर जस्टिस फोर्डम ने कहा कि शायद काउंसिल ने ये जो सिचुएशन है ये खुद पर ही लाजमी की है। They have not been provided enough support, और पीटरबoro सिटी काउंसिल ने जो एग्जाम सेशन में डॉक्यूमेंट्स रखे थे और हम लोगों ने उनसे जो डॉक्यूमेंट्स की मांग की थी, वो अभी जज ने बोला है कि वो लोग उनको प्रोवाइड करें, एंड आफ्टर ऑफ कोर्स वो जो डॉक्यूमेंट्स जब आ जाएंगे सामने वो दोबारा रिव्यू होगा एंड देन विल गो फ्रॉम देयर। बट इसको अभी मई से जून लगेगा आराम से। सो रवि जी, जिस तरह
इसको खरीदने के लिए 1.3 मिलियन जो अपनी जो कम्युनिटी ने वो भी पैसे इकट्ठे किए सीगे। सो किसी तीसरे पक्ष के पक्ष में आपकी जो ये जो डिमांड थी वो भी कैंसिल की गई। हाँ जी। सो देखो 1.3 मिलियन इट्स अ वेरी बिग एंड अ वेरी फेयर प्राइस। और अगर वो कहते कि भी ये तो ज्यादा आई है कि चलो जितनी भी आई है मैक्सिमम दस दो, तो उस हिसाब नाल देख लो अगर ए पार्टी हिंदू कर सकते दे सकते हैं। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮਝੌਤਾ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। तो गौरी जी ऐसा तो नहीं है कि शायद हम लोगों को समझाने में कितने ना कितने कमी रही है अपने अपनी बात रखने के लिए कि हमारे इस टेम्पल से किस तरह की भावनाएं जुड़ी हुई है, कितनी 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 वैल्यू रखता है हिंदू टेम्पल जो है हम लोगों, क्योंकि वहां पर जिस तरह 40 साल कम समय नहीं होता है। सो मतलब इसमें तो कहीं ना कहीं कमी नहीं देखी गई अपनी बात को रखने में। नहीं, आप आपका सवाल ठीक है अनमोल जी, लेकिन मुझे नहीं लगता कमी रखी गई है, बिकॉज़ हम लोगों ने पीटरबरो सिटी काउंसिल को रीच करने के लिए मतलब एवरी पॉसिबल द डोर दैट वी कुड नॉक, we've done that. And just to correct you there, sorry, it's 1.4 bid that we have put in front of the city council. तो हम लोग तो पहले वो 1.2 था, फिर 1.3 हुआ। हम लोग तो 14 ईयर्स से यही काम कर रहे हैं कि चलो समझौता हम लोग को खरीदना है, आप बता दो कैसे खरीदे। तो वो ट्रस्ट और फेथ पे ही सारा मामला चल रहा था। 1.3 से शॉकिंग था कि उन्होंने ओपन बिड मार्केट में इसको एकदम से डाल दिया, which was very shocking. Then we put a bid में जो the way you write a bid, आपको सब कुछ दिखाना पड़ता है, उसमें सोशल वैल्यू भी आती है आपकी कि आप क्या क्या मंदिर में काम करते हैं, आपका ये कम्युनिटी सेंटर what value has it got, what history has it got, everything। तो उसके सपोर्ट में we've tried to provide everything। and 1.4 को भी अगर नहीं मानते तो I don't know। and the biggest thing here is कि जब भी कोई इस कंट्री में ब्रिटेन में जब भी कोई सिटिंग टेनेंट होता है जो इतने लंबे समय से उसी प्रॉपर्टी पे होता है, उनको फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल दिया जाता है, राइट। वी नेवर गॉट दैट। आप इतनी बड़ी आप सेल कर रहे हो, आप इतने एस्टेब्लिशमेंट को हिलाने की या खत्म करने की या मूव करने की बात कर रहे हो, यू आर सो इनसेंसिटिव on this matter where there's religious aspect, where there's communal aspect, or Peterborough City Council does not care. They should have come to us and spoken to us on how do we do what they want to do. We could have actually not gone to judicial review if that door was open from the city council, but sadly we feel very neglected right now। Yeah, रवि जी 27 फरवरी को हाई कोर्ट के जो जज है उन्होंने इस बिक्री इस सारे मैटर के ऊपर रोक लगाने का भी जो ऑर्डर था वो दिया था, बट अभी तक ऐसा कुछ डिसीजन जो है वो ना तो लिखा गया है ना उसको स्टॉप किया गया है। That's right. थोड़ा टाइम चाहिए उनको because they say they have to get the paperwork. Gauri and the team have done a great job कि भाई हमें ट्रांसपेरेंसी दिखाओ कि अगर आपने हमारे लिए हमारे साथ आपने कोऑपरेट किया है, आपने सब कुछ पेपर वर्क दिया था, तो वो दिखाओ। क्योंकि नहीं दिखाया तो जज ने कहा ओके हम थोड़ा एक्सटेंड करते मई जून तक, तो और सब ये पेपर वर्क आने दो, फिर हम सलाह करेंगे कि आगे क्या करना है। Gauri, some critics may argue that the council has a financial pressure and difficult choice to make. So how do you respond to those arguments? देखिए, council is a democratic body, right? Council definitely it has a financial pressure, but that's why we say, right, Lord Ramiji also wrote to the council and said we are happy to match the bid. In fact, we are happy to top it up. But like I said in the previous answer कि वो कभी वो ऑप्शन ही कभी नहीं आया। हम लोग मैच करने के लिए रेडी हैं। ये फिगर जो 1.3 था ये भी काउंसिल से आया था, राइट। इफ दे टेल अस व्हाट दे एक्सपेक्ट, वी विल नेवर वांट कि काउंसिल डेफिसिट में जाए। हमें बस अपनी जगह चाहिए, दैट्स ऑल वी आर सेइंग। तो रवि जी, यू आर अ मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। सो किस तरह के रिएक्शंस जो है अपने जो हिंदू समाज, अपनी जो हिंदू कम्युनिटी है, उन
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ इमोशनल समय है कि 40 साल पुराना टेम्पल हिंदू टेम्पल जहाँ पर हर तरह की 40 साल तो एक्टिविटीज हो रही ਸੀਗੀ ਜੋ 올ਡ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ क्या गवर्नमेंट इस सिचुएशन से निकलने के लिए ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਅਗਰ ਤਾਂ ਹਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਹ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਬਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲ ਜਾਓ ਇੱਥੇ 40 ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫॉर द ਹੋਲ ਪੀਟਰਬਰਾ ਏਰੀਆ there's a soup kitchen तो ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਓ I mean doesn't make sense especially ਅਗਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੌਰੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ will match and even better than match anyone else's bid ਔਰ ਹੋਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ and so the whole association of Hindu organization they're all really upset ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ and I will say also from the Sikh community as well ਬਹੁਤ support ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ ਜੋ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ तो गौरी इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिमिनेशन ਦਾ तो कुछ ऐसा नहीं ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ नहीं, I can't really comment on that because हम लोग का if I come from the trustee angle and the board of trustees, right, our fight is हम लोग सिर्फ काउंसिल की उसमें देख रहे हैं अभी उसके पीछे क्या कारण है वो काउंसिल जाने ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਟਰਬਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹਿੰਦੂ ਟੈਂਪਲ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਿਲ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ रवि जी एसोसिएशन ऑफ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन और गौरी भारत हिंदू समाज yeah कभी आप लोगों ने ये उनसे बात करने की कोशिश नहीं करी कि हमें एक दूसरी जगह दे दी जाए उन्होंने हमें 1-2 जगह दिखाई थी लेकिन वो इतनी छोटी हैं क्योंकि हमारे लिए तो इतनी ज़्यादा छोटी है ना जहाँ पार्किंग है ना कुछ है। बात अभी क्या है यहाँ पे अनमोल जी, यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही हुई है। आपको पता है कि हमारे धर्म में उसकी कितनी बड़ी वैल्यू है। The बिल्कुल मूर्तिज आर concentrated, right? So हम्म it is not about moving right now. It is about principle. It is about and the thing is कि इसमें जो यू टर्न आया है वो समझ में नहीं आ रहा है। ये हम्म सब बातें हो सकती थी और होनी भी चाहिए लेकिन 2025 तक काउंसिल हमें ये देने को तैयार थी उन्होंने हमको बताया कि इतने पैसे चाहिए उसमें हम काम कर रहे थे हमने ईजीएम किया एजीएम किया वी spoke to the members we were happy and we were proceeding and I'm really sorry to say but जैसे ही ये change of administration हुआ है ये कुछ यू टर्न आया है and we that has become very shocking for us and we are ओ just hoping that they consider all of this और ये फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल भी नहीं मिला बहुत सारी चीजें इट्स नॉट अ सिंपल आंसर एज इट इज रवि जी बताया जा रहा है कि जज ने कहा है कि काउंसिल लगता है किसी भी स्थिति इस सिचुएशन को खुद ही पैदा कर रही है या करेक्ट बिकॉज उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया जैसे गौरव जी कह रहे हैं बैठकर जब ये जगह दूसरी जगह जो खाई बहुत छोटी है पार्किंग वगैरह वगैरह सो दैट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पर जो ये जैसे कह रहे हैं कि ये जगह 40 साल यहाँ पे है और सब कुछ सेट है और उतना पैसा जो उनको चाहिए वो मिलन देने के लिए तैयार है फर्स्ट रिफ्यूजल होना चाहिए ये जो पॉइंट है ना ये हमें लग रहा है कि ये थोड़े इनसेंसिटिव हो रहे हैं और ये ठीक नहीं काम कर रहे तो इसलिए हमें थोड़ा प्रेशर डालना पड़ेगा और हम थैंक यू अनमोल जी आप अपना काम कर रहे हैं टू पुट दैट हाईलाइट दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गौरी आपने उस एरिया के एमपी से बात करने की कोशिश की कि ये हमारा जो इशू है इसको पार्लियामेंट में रेज किया जाए यस हमने की थी वी हैव रीच्ड आउट टू हिम बट सैडली यहाँ पे अभी मई में इलेक्शन भी है तो बहुत अच्छा रिस्पांस हमको नहीं मिला सैडली इट वाज नॉट वेरी सपोर्टिव कई ईमेल किए पहले तो ईमेलों के या तो जवाब नहीं आते हैं बट मे बी दे डोंट फाइंड दिस टॉपिक एज इम्पोर्टेंट फॉर देम और समथिंग लाइक दैट because sadly end of the day we are a minority here aren't we and it's I think it's all down to voting numbers or something
like I said, I can't comment on the political side, but we didn't get as much support as would have liked it to be. Yeah. तो वहाँ के लोकल अपने हिंदू कम्युनिटी का रिएक्शन क्या है इस टाइम, जब से उनको ये चीज पता चली है? Mixed emotions, very sad, it from shocking to, it not going to the open bid. फिर वो सबसे बड़ा झटका था, फिर कि हमको मिला नहीं तो दुख थे, फिर जब पता चला कि अरे इन लोगों ने ये भी नहीं कंसिडर किया, ऐसे भी नहीं किया, वैसे भी नहीं किया, none of the sentiments have been taken into consideration, and people are made to feel marginalized. तो अब गुस्सा भी है थोड़ा, लाइक यू सेड, आपने पहले पूछा था कि ये खाली इमारत नहीं है, इट्स अ लेगेसी। तो लेगेसी जब हिलती है और लेगेसी पे जब चोट लगती है तो दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है, फ्रस्ट्रेशन भी होता है, और ये सारे मिक्स्ड इमोशंस अभी हर एक हिंदुस्तानी के या हिंदू के दिल में हैं। रवि जी, लॉर्ड रवि रेंजर ने भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करी थी। उन्होंने वालों ये भी कहा गया सीगा कि इस चीज की जो पैसे है या इस चीज के जो भी अमाउंट है वो मेरी तरफ से, लेकिन इस टेम्पल को आप यहीं रहने दो। करेक्ट। सो काफी बेनिफैक्टर्स हैं, काफी स्पॉन्सर्स रेडी हैं, बट बात है कि अभी आप देखें जो लीगल जो अभी बिल होगा, बिकॉज ऑब्वियसली टू जुडिशियल रिव्यू पैसे लगते हैं, और अनमोल जी आप देखेंगे कि इतना जितना पैसा चाहिए था उससे ज्यादा ऑलरेडी क्यूमुलेट हो गया, और डिफरेंट कम्युनिटी से पैसा आया। दैट इज इतनी इमोशनली चार्ज्ड है लोग, और ये हम चाहते हैं कि ये प्रेसिडेंस ना होए, और सेंसिटिविटी टेक इनटू अकाउंट लोकल community reaction, और क्या what is the best for the, as अनमोल जी कह रहे हैं, अपने गौरी जी कह रहे हैं, we're sitting tenant here for the last 40 years, 4 साल नहीं 40 साल, it is not a joke, और that is why this is a really exceptional case which should be considered very sensitively। ਗੌਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ केसेस है वो लीगली नहीं जाने चाहिए, क्योंकि ये एक भावना से जुड़ा मामला है? एब्सोल्युटली, आई थिंक लीगल एक लास्ट रूट होता है, और लीगल रूट किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है, बट बात प्रिंसिपल पे आती है, और किसी को भी इतना don't force somebody to that extent that they have to take this route, right? And right now, as I said, जैसे रवि जी ने भी बोला कि और मैंने पहले बोला, ये लेगेसी है। हम लोग जो प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, या फिर वी वांट कि ये फेयरनेस पे जाए, अगर देयर शुड बी, पहले मैंने जैसे आपको बताया कि उनको आके हमसे बात करनी चाहिए थी, देयर इज अ कंसल्टेशन प्रोसेस एज वेल, सिट डाउन, ऑल द पार्टीज टॉक टू ईच अदर, where we can find a middle route which is better for both the parties. That has been skipped, and it's gone to the market, which is not right, and I'm super shocked to this date कि जो काउंसिल ऑफिसर्स हैं उन्होंने किसी ने भी इसको रिकमेंड नहीं किया कि this is not right, there is a midway solution, let's talk, let's bring something on the table. कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, so it's quite appalling and shocking at the same time. तो रवि जी, अगर लीगली ये मामला नहीं निपटता है तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? पर देखो अभी तो ऑब्वियसली इट्स अ काउंसिल प्रॉपर्टी, अल्टीमेटली उनकी डिसीजन होगी, पर अगर ता देखो दो चीजें हो सकती है, या तो हिंदू कम्युनिटी को देंगे या किसी और को देंगे। अगर हिंदू कम्युनिटी को देंगे बेस्ट सोल्यूशन है, और किसी और अगर उनके पास अभी भी नहीं है और या है, उनको दे दें जो दूसरी जगह है, बिकॉज दे हैव नॉट स्टार्टेड एट ऑल। सो दैट इज ऑप्शन वन। ऑप्शन टू, अगर दूसरी टीम को दे दें जिन भी हायर बिडर है, फिर ये ऑब्वियसली इमोशनल, द फिजिकल, साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट होगा उसका, वो तो देखना पड़ेगा। तो तीसरा ऑप्शन है कि कुछ और भी हो सकता है, that perhaps we can Gauri and team can sit with the council and see, और कोई ऑप्शन है। अभी तक ये केस समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, अभी तक प्रॉपर रीजन नहीं मिल पाया किसी को भी। देखिए, रीजन हमें भी नहीं मिल पाया, एंड हम लोग भी फोर्सफुली इस रूट पर जा रहे हैं, बट जैसे कि सनातन धर्म कहता है आपको धर्मा को फॉलो करना चाहिए। हमारा धर्म है कि हम हमारी लेगेसी को बचाएं, ये हमारा धर्म है कि
आपको इनजस्टिस के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ता है और फिर तो भगवान भी आके आपकी रक्षा करते हैं और हम लोग बिल्कुल। बस यही सोच के आगे बढ़ रहे हैं। एंड मेरा मैसेज फर्स्ट ऑफ ऑल विद अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड फोल्डिंग हैंड्स की इतने सारे लोग स्पेशली द सिख कम्युनिटी, not just locally in Peterborough, but across the board, in nation, they have been extremely supportive for a Ram Mandir. And I just want to take this opportunity, via yourself to thank everybody. So आपका बहुत 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 धन्यवाद सबका. बिल्कुल। गौरी, मेरा आखिरी क्वेश्चन रवि जी आपको भी, कि क्या इस केस को लेकर कभी आपने नरेंद्र मोदी से बात करने की कोशिश करी है? ऑब्वियसली, कि इस तरह का जो चीजें हैं जो यूके में मतलब हो रही है, हम लोग फेस कर रहे हैं हिंदू समाज। पीएमओ से मैंने एक दूसरे न्यूज़ चैनल के थ्रू गुहार भी की थी, इंडिया 18 के थ्रू. एंड पीएमओ लेटर, अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो यू कैन एक्चुअली सेंड अ रिक्वेस्ट. सो दैट रिक्वेस्ट आई हैव सेंट एज वेल, एंड आई हैव आल्सो रीच्ड आउट टू इंडियन हाई कमीशन. तो विक्रम दोरेस्वामी जी जो हैं, ही इज अवेयर. तो वी आर ट्राइंग ऑल पॉसिबिलिटीज. लेट्स सी व्हाट डोर ओपन्स फॉर अस. रवि जी कुछ कहना चाहेंगे आखिरी में? Well, thank you. I think इस मैटर में मेरा ख्याल सब communities बिल्कुल। an agreement, including the host community. अगर आप BBC का भी coverage देखें, they were very positive and pro के ये मामला थोड़ा सा sensitive है और हिंदू community को देना ही चाहिए. और ये रिक्वेस्ट है पीटरबर्ग काउंसिल के साथ कि बैठ के समझौता निकाल लें. बेस्ट यही होगा. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੌਰੀ ਚੌਧਰੀ, ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਵੀ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। Thank you, Anmol. Thank you everyone. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਤੇ ਆ ਸੀ ਪੀਟਰਬਰੋ ਦੇ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ। ਅਗਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਅੰਗੋ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦਾ ਅਨਪਲੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੁਝ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਬ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।